Good morning student, this is Nadeemuddin, your biology teacher. Now we will discuss second chapter of 12th class biology. The name of the chapter is sexual reproduction in flowering plants. As you know, flowering plant means an angiospermy plant, means which produce the flower and fruits. Okay, in the flower the reproduction occurs. Sexual reproduction occurs in the flower. That's why we will discuss this chapter, sexual reproduction in flowering plants. Now first topic we will discuss parts of a flower. You can see the structure of the flower, a viscous or rose. Okay, the first part, which is bottom part of the flower, is called the thalamus. Now we will discuss first point. And a flower, four different sets of holes or floral membrane are attached to a central axis called thalamus. Means फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, 4 चक्र होते हैं और जो कहाँ पर अटैच होते हैं, जो थैलेमस पे अटैच होते हैं. सेकेंड पॉइंट, द आउटर मोस्ट एंड द फर्स्ट एसेसरी होल्स इज ऑफ सेपल्स एंड इज कॉल्ड द कैलिक्स. मीन्स द ग्रीन लीफ which is bottom in the flower, that is called the sepals. The group of sepals is called the calyx. Okay, जहाँ आप फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर के सबसे नीचे जो स्टॉक होती है, जो डंडी होती है, उसे हम थैलेमस बोलते हैं. उसके ऊपर जो पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है सबसे नीचे की ओर, उसको हम सेपल्स बोलते हैं. और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड दी calyx. Okay, now next, the secondary accessory all in of is of petals and is called the corolla. Okay, the colorful leaves in a flower is called the petals. In a rose flower you can see the pink or red color leaf is called the petals, or group of petals is called the corolla. Okay, understood? जो लीफ होती है कलरफुल फ्लावर के अंदर, उसको हम पेटल्स बोलते हैं और उसके ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट टू द कोरोला, कोरोला से अगला इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑल ऑफ स्टेमन कॉल्ड द एंड्रोसियम. ओके, you can see the structure of the flower. There is a standing form structure, thread like structure, standing form like that. It is called the stamens. Stamens, a group of stamens is called the androsium, which is the male reproductive all. Male reproductive part in the flower is called the androsium. Is that clear? Okay. Next, the female reproductive all is of carpel is called the gynosium or pistil. As you know, the female part in a flower or female reproductive part is called the carpels. A group of carpels also called the gynosium or pistil. Okay, remind you, whenever you take the flower, the bottom part is called the, where the flower is attached, is called the thalamus. The green leaf is called the calyx. The upper colorful leaf is called the corolla, and next is the male reproductive part is called the androsium, and the female reproductive part is called the pistil or gynosium. Now we will see the structure of the flower. You can see the structure of the flower. This part is called the thalamus. Okay, this leaf, the bottom green leaf, is called the sepal. Okay, the group of sepal is called the calyx. Is that clear? The colorful leaf of a flower is called the petal. The group of the petals is called the corolla. Okay, the thread like standing form structure is called the stamen. The stamen include 2 parts. Upper part is called the anther and lower part is called the filament. Okay, the group of stamens, is called the androsium, which is the male reproductive all. Okay, next is the distinct structure. You can see here the female structure, reproductive structure. Okay, it is called the pistil or carpels. Pistil or carpels. Okay, a group of pistil or carpels which may be single or which may be multiples. It is called the gynosium. Male reproductive part and female reproductive part. Male reproductive part and female reproductive part, which fuse and make the new plants. Okay, next point. Now we will discuss the
फंक्शंस ऑफ फ्लोरल मेम्ब्रेन। फ्लोरल मेम्ब्रेन व ऑल्स ऑफ द फ्लावर, जो पार्ट्स देखे हैं ऑफ द फ्लावर के, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करने दें, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं वो। तो कैलिक्स, एज यू नो, कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स मीन्स द ग्रीन लीव्स, okay, which is bottom in the flower. First point in the calyx, its main function is to protect the flower in bud condition. Whenever the flower in bud condition, the calyx protect the flower. मीन्स जब कली की फॉर्म में होता है फ्लावर, तब इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? कैलिक्स का होता है। इट इज़ स्मॉलर देन द पेटल्स इन साइज, और ये पेटल्स किस साइज में छोटे होते हैं। ओके, you can see structure again, sepals and petals, stamen and gynocarpal. Calyx, a group of sepals which include which is the protective part of the flower. Okay, second point, when green is it is photosynthetic in nature. जब ये ग्रीन कलर का होता है तो इसके पास कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, विच मेक देयर फूड ऑन सेल्फ बाय द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट, व्हेन कलर्ड इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जब ये कलरफुल होते हैं तो यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट होते हैं, आके जुड़ते हैं, और जिससे क्या होता है? पॉलिनेशन शुरू होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कोरोला। कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ सेपल। नाउ कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कोरोला, इट प्रोवाइड्स कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। मीन्स जो कोरोला होता है, मीन्स आपको जानते ही हैं, वो कलरफुल लीव्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से खुशबू, ठीक है, फ्रेगनेंस आती है और कलर दिखाई देता है, जिसकी वजह से पॉलिनेटर मीन्स इंसेक्ट उससे आकर अट्रैक्ट होते हैं। समटाइम्स द बेस ऑफ कोरोला बेयर्स सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड सीक्रेट नेक्टर। और कभी कभी क्या होता है, कोरोला जो होता है उसमें क्या होता है? सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं। कुछ फ्लावर, कुछ स्पीसीज में सिक्रेटरी ग्लैंड होती हैं जो नेक्टर को सीक्रेट करती है, जिससे इंसेक्ट उस पर आकर अट्रैक्ट होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। और क्या करते हैं ये भी दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। ओके, ये भी फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। एंड्रोसियम, एज यू नो, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर. Its main function is the production of microspores. Okay, it provides the microspores. Microspores mean pollen grain. It converted into the pollen grain. Pollen grains containing male gametes within the anther lobe. और जो pollen grain होते हैं उनमें male gametes होते हैं जो anther lobe में ही होते हैं. Okay. Gynoecium, as you know, it is a female reproductive part. The function of gynoecium is production of megaspores, eggs, fruits and seeds. gynoecium का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि ये मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्स होता है, फ्रूट्स होते हैं और सीड्स। ये कहाँ से बनते हैं? gynoecium में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो रिमाइंड कीजिए अपने आप को, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्लावर देखते हैं, फ्लावर में जो हमें स्टेमेंस मिलेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनके ग्रुप को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेमेंस के बारे में बात करते हैं। स्टेमेन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट्स। जो स्टेमेंस होते हैं उसमें टू पार्ट्स होते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। फर्स्ट फिलामेंट, सेकेंड एंथर। A long and slender stalk called the filament. Okay, जो slender सीधा stalk खड़ा हुआ होता है उसको हम filament बोलते हैं। A bilobe terminal structure called the anther, और दो लोब का
one lobe, second lobe, two lobe terminal means last point. Bilobe terminal structure is called the anther. Okay, it produces the microspores, and microspore converted into the pollen grain, and pollen grain converted into the male gametes. Okay, now we can see the structure of the anther. It is composed of two anthers. It is composed of two anther sacs or lobes separated by a tissue called the connective tissue. और आपको पता होना चाहिए ये एंथर होता है, बाइलोब्ड होता है, वन लॉब सेकंड लॉब, टू लॉब्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इस लॉब्स को, दोनों लॉब्स को डिवाइड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू बीच में मौजूद होता है, प्रेजेंट रहता है। द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लॉब और सेक्स कंसिस्ट ऑफ टू थीसा सेपरेटेड बाई सेप्टम। और यहाँ आप देखेंगे स्ट्रक्चर में इट इज़ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर. It is a bilobed, one lobed and second lobe. Each lobe divided or separated into two thesa. One thesa, two thesa. One thesa, one thesa, two thesa. Means each lobe has a two thesa. Means anther has a four thesa. Okay. It is divided by. It is means thesa divided by the septum. Thesa divided by the septum. Now the anther is tetragonal. You can see the tetragonal means four parts. Tetragonal, four-sided structure consists of four microspongia, two in each of the lobes. One lobe has a two microsporangia. One microsporangia present in this structure, one here and one here. Total is four microsporangia present in this single anther. Microsporangia develop and get transferred into pollen sac. और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, डेवलप होती है और क्या बना देती है, पोलन सैक। और पोलन सैक बनते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। इज दैट क्लियर? यू कैन सी द स्ट्रक्चर अगेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. दिस इज फिलामेंट. It all part is called the stamen. Stamen has a two parts, filament and anther. Here the transverse section of the anther, its part is called the filament. It is a anther part. Okay, anther has a two lobe, one lobe and second lobe. Each lobe divided by the connective tissue. Each lobe has a two thesa, one thesa, two thesa. It means anther has a four thesa. Okay. The thesa divided by the septum. Okay, now we are going to next topic, the structure of microsporangium. Microsporangium is four microsporangium. In a one thesa has a one microsporangia, means anther has a four microsporangia which is present in each thesa, or we can say two microsporangia present in a one lobed. Means two lobed has a four microsporangia. Is that clear? Okay, now next. The structure of microsporangium. The microsporangium is a singular word. Microsporangia is a plural word because each anther has a four microsporangia. That's why we are saying microsporangium is a single word. Okay, singular. A typical microsporangium appears circular and is surrounded by four balls. तो आप इसको समझ सकते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो दिखाई देता है वो कैसे सर्कुलर दिखाई देता है और चारों तरफ उसके दीवारें होती हैं, चार दीवारें होती हैं, चार फोर बॉल्स होती हैं. आउटर पार्ट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज कॉल्ड द एंडोथीसियम, नेक्स्ट इज कॉल्ड द मिडिल लेयर, लास्ट वन इज कॉल्ड द टैपेटम. ओके, नाउ we can see the structure of this. You can see the structure. This part outer side is called the epidermis, next is called the endothermis, next is called the middle layer or mesoderm, or last one is called the tapetum. Is that clear? 1 2 3 and 4. Is that clear? Now come to the point.
Epidermis is the outermost single layer of cell which is protective in nature. जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहर की सिंगल लेयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करती है. एंडोथीसियम, इट इज द सेकेंड लेयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एपिडर्मिस. इट इज द सेकेंड लेयर विथ थिक सेल्स. क्या होते, थिक सेल्स होते हैं, मतलब बहुत मोटे सेल्स होते हैं. हेल्प इन द डिहेल्थ एंड द प्रोटेक्टिव इन नेचर. और क्या होते हैं, ये भी प्रोटेक्टिव होते हैं लेकिन ये स्लोली मूवेबल होते हैं, थोड़ा इसमें मूवमेंट हो सकता है. मिडिल लेयर, इट इज थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स. ये मिडिल लेयर होती है वो 1 से लेकर 3 लेयर्स तक, 1 से लेकर 3 लेयर्स तक की बनी हो सकती है. हेल्प इन द डिफेंस एंड इट प्रोटेक्टिव नेचर. सेम, ठीक है, ये भी प्रोटेक्ट करती है माइक्रोस्पोरेंजिया को और थोड़ा मूवमेंट भी हो सकता है, जैसे कि हवाएं चलती हैं तो उसमें ये प्रोटेक्ट करते हैं. Tapetum is the last part. It is the fourth and innermost layer of a cell with dense cytoplasm and many nuclei. It provides nourishment to the developing pollen grain. Tapetum is the innermost layer. Okay, innermost layer of the cell. Okay, इसमें क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है क्लियर और मल्टी न्यूक्लियर होते हैं. क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये इट प्रोवाइड नरिशमेंट, और ये इसके क्या करते हैं, नरिश करते हैं, मीन्स इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं. किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को, और फिर वो उससे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. द सेंटर मीन्स दिस पार्ट, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज द सेंटर. The center of each microsporangium is filled with closely arranged similar cells called sporogenous cells. Is that clear? Means इसके बीच में क्या होते हैं, स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, जो पास पास आपस में कनेक्ट रहते हैं. एट मैच्योरिटी, में मैच्योर होने पर, pollen sac is formed by fusion of 2 microsporangium in a lobe. Okay, we can divide into 2 parts, one lobe this part, one lobe this part. Okay, this is connected to the, which is connect the both lobe. Okay, now this part is called the thesa, 1 thesa, 2 thesa. This is called microsporangium. Okay, at maturity, when the anther is mature, pollen sac is formed और pollen sac बन जाते हैं by fusion of 2 microsporangia in each lobe. सिंगल लोब में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं. ओके, देखो यू कैन सी एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर, नेक्स्ट एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ओके, टैपेटम इज लास्ट, एंड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स व्हेन एवर इट कन्वर्टेड इनटू बाय द स्पोरोजेनस सेल्स और टिश्यूज. नेक्स्ट, नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस means the process of formation of microspore, means जहां माइक्रोस्पोर बनते हैं from the pollen sac mother cell. किससे, pollen sac mother, pollen mother cell से, किससे, pollen mother cell से. by meiosis means reduction is called microsporogenesis. ओके, आप समझ सकते हैं माइक्रोस्पोर्स का बनना किससे, पीएमसी, पोलन मदर सेल से, मियोसिस डिवीजन के जरिए से. ठीक है, मियोसिस डिवीजन किस में होगी, पोलन मदर सेल में, और क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इज दैट क्लियर? यू कैन सी द स्ट्रक्चर अगेन. दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंथर. इट डिवाइडेड इनटू 2 lobe, it divided into 2 thesa. Okay, this is called the epidermis, endothermic connective tissue. This one pollen grain. Now we have seen the last topic. This part is called the microsporangium. Microsporangium has the one type of tissue, sporogenous tissue, which develop and makes the pollen grain by the PMC, pollen mother cell. Okay, now यहाँ पर क्या थी, माइक्रोस्पोरेंजिया थी,
माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्पोरोजेनस टिश्यूज थे। स्पोरोजेनस टिश्यूज ने इसमें डिवाइड करके दोनों ही को कनेक्ट कर दिया, दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो गए और पोलन मदर सेल पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ओके, each cell of sporogenous tissue, do you remember sporogenous tissue where is present in the middle of microsporangia. Each cell of sporogenous tissue is microsporangium in a act as a potential pollen mother cell PMC और microspore mother cell। तो क्या होता है, स्पोरोजेनस जो टिश्यू प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में, उसका एक एक सेल क्या करता है, एक्ट एज ए पोटेंशियल, और पोटेंशियल जैसे ताकतवर एक्ट करता है और क्या बनाता है, कैसे क्या काम करता है, पोलन मदर सेल का काम करता है। किसका करता है, पोलन मदर सेल पीएमसी या फिर एमएमसी, वी कैन से पीएमसी पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, और इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ इन द नेक्स्ट जनरेशन। पीएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म क्लस्टर, मीन्स पीएमसी क्या होता है, मियोटिक डिवीजन करता है और टू फॉर्म क्लस्टर, क्लस्टर में ग्रुप ऑफ 4 सेल्स और 4 सेल्स का एक ग्रुप बनाता है। एक पीएमसी 4 सेल का एक ग्रुप बनाता है, जिसे बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 हो गए तो टेट्राड हो गए। पीएमसी से मतलब वाला था, पोलन मदर सेल से बना था, इसलिए इसके क्या माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी जब मैच्योर होते हैं, द एंथर डिहाइड्रेट्स, और एंथर पानी खत्म हो जाता है, एंड द माइक्रोस्पोर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म पोलन ग्रेन। और ये टेट्राड बने थे, इनमें से पानी खत्म हो जाता है और ये चारों पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। मीन माइक्रोस्पोर इज ए पोलन ग्रेन। इज दैट क्लियर? ओके, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट। ओके, डोंट वरी। इफ यू नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। Now, pollen grain. Okay, pollen grain is a microspore developing. Okay, the develop from PMC by meiotic division. Pollen grain कैसे बने थे आपको मालूम है, PMC से। PMC कैसे बने थे, माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हुआ था, उसमें स्पोरोजेनस टिश्यूज आए थे, उन्होंने उसको मैच्योर करा था, तो उसके लिए बोला था PMC। ठीक है, बहुत सी PMC बने थे और हर एक PMC ने 4 पोलन ग्रेन 4 पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस किया। ओके, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, और यही के रिप्रेजेंट करते, यही मेल गैमेटोफाइट है जो कहाँ जाता है, फीमेल पार्ट पर जाता है, स्टिग्मा पर पहुँचता है। दे पोजेस 2 प्रोमिनेंट वॉल लेयर्स, इस पर जो पोलन ग्रेन होता है इस पर 2 बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग लेयर्स होती हैं। आउटर इज कॉल्ड द एक्सिन and inner is called the intine, axine and intine. Okay, you can see in the structure the outer is called the axine, the inner is called the intine. Okay, the axine is a hard layer made up of sporopollenin. Okay, you can note this point because it is very important for the NEET examinations also and board examinations also. Sporopollenin, it is a hard form. The axine is a hard layer made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material present in nature. आप समझ गए होंगे इस बात को समझ के कि स्पोरोपोलेनिन जो है एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है नेचर में, इसको आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, डीनेचर नहीं किया जा सकता इसको। इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, मतलब ये हाई टेम्परेचर भी प्रेजेंट रह सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड देना चाहे उस पर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड एल्कलाइस,
और एल्कोहल वगैरह एल्कलाइन में डालने से भी इस पर कोई फर्क नहीं होगा। इवन एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलेन, और एंजाइम्स भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। एंड हैंस पोलेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, इसलिए हम पोलन को प्रिजर्व कर सकते हैं एज ए फॉसिल, फॉसिल के फॉर्म में इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नाउ द इनर थिन लेयर ऑफ इंटाइन मीन्स द इनर लेयर इज कॉल्ड द इंटाइन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। द एक्साइन हैज़ एपरेचर, और एक्साइन में बाहर से एक एपरेचर में एक छोटा सा होल होता है, छिद्र होता है। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं। कॉल्ड जर्म पोल्स, इसको क्या बोलते हैं हम? जर्म पोल्स बोलते हैं। मीन्स आउटर लेयर होती है एक्साइन, वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम जर्म पोल्स बोलते हैं। द न्यूली डिफ्रेंशिएटेड पोलन ग्रेन हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, और जो नया पोलन ग्रेन बनता है, डिफ्रेंशिएट होता है, उसमें क्या होता है? सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। द प्रोटोप्लास्ट मीन्स liquid form or matrix in a cell is called the protoplast. The protoplast mitotically means cell, mitotically means reproduction, okay, division of the cell, similar, it makes similar cells. The protoplast mitotically divided into two unequal cells, और क्या होते हैं? दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम नंबर ठीक रहेंगे लेकिन साइज दोनों के डिफरेंट होंगे। बिगर वेजिटेटिव सेल विच इज रिच इन फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जो बड़ा वाला बनता है बिगर उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? फूड रिजर्व रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलर स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड का होता है ये, जिसे हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव, यही जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। दिस इज कॉल्ड दी टू सेल्ड स्टेज, वन सेल सेकेंड सेल, वाई दैट इज वाई इट्स कॉल्ड दी टू सेल्ड स्टेज, मीन्स पोलन ग्रेन इज ए टू सेल्ड स्टेज। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब बहुत सारे अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं आप प्लांट्स की, पोलन्स आर रिलीज इन दिस टू सेल्ड स्टेज, ज़्यादातर में तो टू सेल्ड स्टेज होती है, ठीक है। वेयर एज इन अदर स्पीसीज, और कुछ स्पीसीज में द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, और जो जेनरेटिव सेल्स था आपका स्मॉल स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल, इट डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट्स, किस में कन्वर्ट हो जाता है? टू मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दस पोलन इज सेड टू बी इन थ्री सेल्ड स्टेज, मीन्स कुछ स्पीसीज ऐसी होती है एंजियोस्पर्म्स में कि उसमें आपका जेनेटिव सेल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए वन बिगर वेजिटेटिव सेल्स हो जाते हैं और टू जेनेरेटिव सेल्स होते हैं। दैट इज वाई इज कॉल्ड दी थ्री सेल्ड स्टेज। यू कैन से द स्ट्रक्चर, इट इज अ माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल which is present in the anther. It becomes into the microspore tetrad after maturity. After dehydration, it divided into four microspores separated. It is called the pollen grain. Now, next, as you know, pollen grain has this structure. यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। इस सिमेट्रिकल मीन्स यहाँ पर जो आपका माइटोटिक डिवीज़न हुआ था वो इस सिमेट्रिकल हुआ था, एक छोटा और एक बड़ा, मीन्स एक वेजिटेटिव सेल बना था और एक जेनरेटिव सेल बना था, ठीक है। दैट इज जेनरेटिव सेल, ये दैट इज वेजिटेटिव सेल। समटाइम जेनरेटिव सेल डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू सेल पोलन मैच्योर पोलन ग्रेन, और दिस कॉल्ड इज दिस थ्री सेल पोलन, ओके।
Now, importance of pollen grains. It will be the last topic, okay, for this section or for this lecture. Later we will discuss next topic. They contains importance of pollen grain. pollen grain के क्या importance, क्या फ़ायदे हैं? They contain male gametes for sexual reproduction. तो आपको मालूम है pollen grain में क्या होता है, मेल gametes होते हैं जो sexual reproduction में help करते हैं. These are nutrient rich and thus are taken as food supplement. इसमें क्या होता है, आपको वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट में क्या होता था, न्यूट्रिएंट्स होते थे बहुत से, तो इसको क्या कहते हैं, सब फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है. पोलन कैन बी स्टोर फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस. मीन जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको सालों तक, बरसों तक -196 मतलब 196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर किया जा सकता है. टू बी यूज लेटर इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, और बाद में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसमें, क्रॉप ब्रीडिंग में, क्रॉप मतलब खेती बाड़ी में यूज़ किया जा सकता है. दे मे कॉज एलर्जी, इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती हैं. दे मे कॉज एलर्जी एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशन इन सम पीपल लीडिंग टू अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा. तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब मौसम चेंज होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, तब खांसी वगैरह होने लगती है. मीन्स उसमें एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है. पोलन ग्रैंड बॉडी के अंदर जाते हैं और एलर्जी क्रिएट कर देते हैं. ब्रोंकियाई मीन्स लंग्स प्रॉब्लम, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लंग्स दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकियाई. ब्रोंकियाई इन्फेक्शन इन कॉल्ड द ब्रोंकियल एफ्लिक्शन. ठीक है, इट बिकम लीडिंग टू अस्थमा. तो आपने देखो अस्थमा की जो परेशानी होती है वो तो नॉर्मल होती हैं, वो एलर्जी की वजह से होती है. और ब्रोंकाइटिस में चेस्ट की भी, लंग्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है. इफ़ हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक लेटर. थैंक यू वेरी मच.